This video is actually based on logarithmic differentiation, which is one of the most important topic. Exam में straight 4 mark question है, आएगा ही आएगा हर साल. Even if you look at 20 years back, it's still there. I don't know whether 20 years, but still there for at least 10 years, so it is there. ठीक है. Now, one thing that you have to understand before actually proceeding to how do you differentiate log functions, let's just understand what exponential functions are. ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो log वाले functions होते हैं, it is actually the inverse of exponential function. Now, exponents is something जो आपने 6, 7, 8 में you have done this before, like 2 to the power of 3, it gives you 8. इसमें this part is basically called base and this is called exponent, the power. And then we multiply 2 thrice and this gives you 8. This is how it's done, right? In case of exponential function, when we talk about exponential function, इसमें होगा क्या? This base is still going to be a constant. ये जो base होगा ये still एक constant होगा, लेकिन जो इसकी power होगी या उसका जो exponent होगा, that is going to be a variable function. For example, 10 की power x. This is how you call exponential function. 2 की पावर x, 3 की पावर x, इन सबको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. लेकिन when we talk about differentiation in grade 12, what we are trying to say here कि जो ये constant है, it is going to be e to the power of x. This is what you have to understand. Now, one thing that you should know about e, कोई इसमें बहुत rocket science नहीं है. It is a value between 3 and 2. Some value between 2 and 3, एक fixed value भी होती है. इसकी series and everything that you will study later on in your higher classes. But one thing that you should know, in exponential function, what we are going to study the same thing, except that exponent, the power should be a variable, that is, it should be x or something like that. And the base that we are going to talk about is going to be e. We are going to talk about e base. ठीक है, कि base e है, where e is some positive number between 2 and 3. Now, one thing that you have to understand कि अगर base positive है, now since e is a number between 3 and 2, between 2 and 3, so obviously it is going to be positive. तो अगर positive number की power, अगर positive, जैसे for example 2 ही है, अगर इसकी power positive है, तो भी एक positive value मिलेगी. अगर इसकी power negative भी है, तो भी how we are going to write this in such a manner, and it will still give you a positive answer. This what you have to understand कि जो base है वो हम क्या ले रहे हैं, हम e ले रहे हैं, which lies between 2 and 3. This is one thing. Secondly, no matter what the power is, whether it's negative or positive, you will anyway get a positive answer. This is one thing that you have to understand. Now, इसमें log का क्या रोल है, ये चीज आप समझ लो. ठीक है, किसी भी नंबर को like इसको जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power of 3, 8. इसी को हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लाइक द इनवर्स ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉग. इसको हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे पावर हमें पता है, बेस हमें पता है, वी गेट द एक्चुअल आंसर. लॉग जब हम यूज करते हैं तो वी नो व्हाट द बेस इज, वी स्टिल नो व्हाट द बेस इज, इट इज रिटन ओवर हियर, एंड वी नो व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी. सो इट गिव्स यू द पावर कि 2 की पावर हम क्या रखें कि हमें 8 मिल जाए. So when we apply log in this, we get the power. It is used in order to simplify questions. That's it. इतना ही रोल है log का. This is used in order to simplify question. Now one thing you have to understand, ध्यान से देख लो, the base is still going to be on the base. ठीक है, यहाँ पे जो value है उसको यहाँ पे लिखेंगे, and जो आंसर निकल के आता है, it gives you the power actually. ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा समझो, when we are talking about e की पावर x, let's say अगर ये इस तरह से e की पावर x equals to something, क्या ले ले, y ले लेते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब how we are going to write log, बेस में हम क्या लेंगे, e, इधर क्या आ जाएगा y, and हमें निकल के क्या आएगा, पावर. This is one thing that you have to understand. Now, in all your NCERT textbook or any book which you are using in grade 12, one thing that you have to understand कि जब भी यहाँ पे log x लिखा है, जब भी यहाँ पे log x लिखा है, ये चीज आप हमेशा याद रखो कि जो बेस है वो e ही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो भी याद रखो, it is going to be one and the same thing. This is something that you should remember. Now, this is what log is. Actually कोई ऐसा इतना हार्ड पार्ट नहीं होता, ये सिंपल आपको याद रखना है that it is inverse of exponential function, one thing. And you can write any exponential function in the form of log. It should not be, I mean, it is not necessary that the power should be variable. I mean, कुछ भी हो सकता है. You can write anything in the form of log. For example, अगर ये है 10 की पावर, अगर मैं 1 रखूंगी तो 10 है. Now जब इसको हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो how we are going to write log
बेस में क्या है 10 है, आंसर क्या आ रखा है 10, सो 10 की पावर क्या हो कि आंसर 10 ही आ जाए, इट इज गोइंग टू बी 1. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लॉग के बेस में सेम नंबर है, लेट्स से 5 है और यहाँ पे भी 5 है, इट विल ऑलवेज गिव यू 1. इसीलिए जब हम e की पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो आपने देखा होगा e तो है तो कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x log 2. इफ इट इज a टू द पावर x, दिस इज गोइंग टू बी a टू द पावर x log a. तो अगर e की पावर x है तो क्या होना चाहिए, e की पावर x log e होना तो ये चाहिए, राइट. लेकिन क्या होता है इन आवर टेक्स्ट बुक वी आर कंसीडरिंग कि भाई बेस में क्या है e है. तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इस एंटायर थिंग की वैल्यू है क्या 1. सो इसीलिए हम इसको लिखते नहीं है, बस इसलिए हम इसको नहीं लिखते. यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x 1. इसमें क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि बेस e है तो हमें नहीं पता भाई कि e की पावर हम क्या रखें कि 2 आ रहा है. सो वी डोंट नो द वैल्यू, ठीक है. उसके लिए तो बिल्कुल टेबल वगैरह ही चेक करने पड़ेंगे हमें. सो दिस इज हाउ इट इज रिटन, दिस इज वन थिंग यू शुड नो, दैट इज वाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज एग्जैक्टली e की पावर x ओनली. उसके साथ log e वगैरह हम कुछ नहीं लिखते. वाई, बिकॉज इन ऑल योर टेक्स्ट बुक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरेवर इट इज log x, इसका मतलब समझ लो कि बेस में e है. तो ये चीज आपको समझनी है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड log, वन थिंग. नाउ हाउ विल यू यूज log? So उसके लिए you should know the various properties. See, if you are a science student, you must have done this in chemistry in class 11. Also, there's a lot of part in class 12 in chemical kinetics that you should know. Now इसमें आप समझ लो कि कैसे यूज होता है. There are certain properties. एक चीज हमेशा याद रखो, कहीं पे भी log e आ जाए उसको डायरेक्टली 1 याद रखना. क्यों? क्योंकि बेस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं e. In all your books it is going to be in such a manner. One thing. Secondly, what are the properties of log? अगर log इस तरह से है, log a plus log b है. If there are two logs and in this manner it is written, you can also write it as log a into log b. This is also you can write it. ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. लेकिन ध्यान में रखना, this is not what it is. ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है. This is not what it is equals to. तो कभी भी अगर इस तरह से आ रहा है, प्लीज don't make this mistake of writing it in such a manner. This is absolutely wrong. You have to understand दिस इज डिफरेंट देन दिस, ठीक है. तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है log ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो दिस इज वाइस वर्सा ऑल्सो. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y. लेकिन अगर यही चीज log x प्लस y है तो येस यू कैन नॉट राइट इट इन सच अ मैनर. दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. वन थिंग, ठीक है. सेकेंड एक प्रॉपर्टी ये होती है. उसके बाद अगर बीच में माइनस आ जाए, इफ इट इज गोइंग टू बी log a माइनस log b, यू कैन राइट इट एज log a अपॉन b. ये चीज हम लिख सकते हैं. लेकिन वही चीज है, दोबारा ध्यान रखना, log a माइनस b को हम कैसे भी नहीं लिख सकते. दिस इज गोइंग टू बी दिस वे ओनली. इसमें कुछ नहीं कर सकते हो. बट हाँ, इंडिविजुअली यू कैन राइट इट इन डिविजन ऑल्सो. ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे log 3 अपॉन log 2 एंड यूर राइटिंग इट लाइक दिस. See, ये दोनों सेम तो नहीं है ना. These two are totally different values. So this is also one thing that you have to understand. If there is a difference, then there is just one log, and this is how it is. Okay. Another thing that you have to understand that log e is 1. अगर कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है n log x, यानी कि log के साथ कोई भी नंबर है, I don't say no number, कोई भी कोफिशिएंट है, so this coefficient will come into this power. Like आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x to the power of n. और अगर ऐसे दिया है तो ऐसे. कहने का मतलब अगर 2 log x है तो यू कैन राइट log x स्क्वायर. ऑल्सो एक चीज और याद रखो कि जब यहाँ पे प्लस का साइन है, मेक श्योर देर आर नो नंबर्स रिटन ओवर हियर. देयर शुडंट बी एनी नंबर्स. ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है log x और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 log y एंड यू आर डायरेक्टली राइटिंग इट एज log x स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 लगा दिया. दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट. अगर इस तरह से तो सबसे पहले देखो ये log x है. अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर बगल में कुछ होगा इट विल कम इन टू द पावर. So we can write it as log y square. Now you can apply this property कि log and दोनों का multiplication x y square. This is one thing that you should know. ये basic चीजें हैं इसमें. इसके अलावा I don't remember anything as such जो use होगा. हाँ, ये सब properties हैं. तो एक बार प्लस की, प्रोडक्ट की, and then you have difference in plus and product are going to be same. एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखो जब हमने क्या कंसिडर करा है
कि e की पावर x हम कुछ भी रखें इट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू. क्यों? क्योंकि जो ये e है इट इज अ पॉजिटिव नंबर. ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है. अगर मैं 5 की पावर 3 रख रही हूँ, ठीक है, तो भी मुझे 1 to 5 मिलेगा. अगर मैं 5 की पावर -3 रख रही हूँ तो ये मत सोचना -1 to 5. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/1 to 5. तो एनीवे यू गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर. तो जब बेस e है, अच्छा जब मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखूंगी तो हाउ एम आई गोना राइट? लॉग बेस में 5 125 इक्वल्स 3. कहने का मतलब ये चीज याद रखना, कभी भी अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है ये जो चीज है दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज. तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा होता है ना ये चीज, तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो मॉड है. ये चीज समझो कि वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर. वी आर ऑलवेज गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर इफ वी आर टेकिंग बेस एज पॉजिटिव. तो ये जो चीज होती है ना लॉग बी ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये चीज समझो इफ बेस इज पॉजिटिव, if this base is positive, this a is always going to be positive. Always. X can be anything, right? Power कुछ भी हो सकती है. प्लस की है तो भी you're getting a positive answer, and if it is negative, then also you're getting a positive answer. This is one thing that you have to understand. ठीक है. तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है log mod x plus 3, don't get confused. All that you should know कि क्योंकि हमें पता है base e है, which is a positive number, therefore e to the power anything will give you positive. So this has to be positive. This is what they are trying to say. ठीक है. तो अगर modulus कहीं लगा होगा, don't get confused about this. Now, how you're going to apply property and why do we need laws? This is one thing that you have to understand. देखो कुछ क्वेश्चन समझ लो. लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है y is equals to cos x dot cos 2x dot cos 3x. Dot as in this is a sign of multiplication. I shouldn't be saying this. So this is the sign of multiplication. Now see, अगर मैं इसके एक और cos 4x लगा दूं, then you can differentiate, right? You can apply product rule because there are 4 different functions there. You can apply product rule and differentiate, but then it's going to be very very lengthy. This is one thing you have to understand कि अगर हम इसको directly differentiate कर रहे हैं, yes we can do, but इतने मार्क का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. तो इसलिए बेहतर होता है कि जहां पे भी क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रूल लगाना पड़ रहा है, अप्लाई लॉग. सो इफ आई अप्लाई लॉग, हाउ डू वी राइट इट? टेकिंग लॉग बोथ साइड. दिस इज हाउ आई एम गोना राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बाय और इधर लॉग cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x. नाउ एज आई सेड, अगर लॉग में मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log a प्लस log b. अगर ज्यादा है तो बस ज्यादा, एक और log c आ जाएगा, d आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर. सिंस देयर आर 4 फंक्शंस, हाउ यू कैन राइट log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x. This is how we can write equals log y. Now see, differentiating this function is very very easy क्योंकि अगर प्लस या नेगेटिव साइन बीच में रहता है तो सिंपल है, log का डिफरेंशिएट करो, you can get the answer. This is way much more easier than applying product rule in 4 functions. Imagine if there are 5 and 7, it will become very very complicated. अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ with respect to x, तो log का डिफरेंशिएशन समझ लो इसको dy dx हो. log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log के साथ कोई भी चीज है इट विल बी 1 अपॉन x. तो log के साथ cos x है तो 1 अपॉन cos x. log का हो गया, हटा दो. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. सो व्हाट यू आर गेटिंग बेसिकली माइनस tan x, राइट? तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस tan x. सेकेंड में आते हैं. log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos 2x. cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x. अब जब ऐसे कर रहे हो तो cos भी तो हटेगा, 2x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. प्लीज प्रॉपरली अप्लाई चेन रूल. ठीक है, इस तरह से करना है. सेम चीज जब यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन cos 3x, cos का माइनस sin 3x एंड देन यू हैव 3. एंड सिमिलरली 1 अपॉन cos 4x एंड देन यू हैव माइनस sin 4x एंड देन यू हैव 4. दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. इधर क्या होगा? log y का डिफरेंशिएशन जो भी है 1 अपॉन y. log हट गया, y का डिफरेंशिएशन 1, साथ में dy by dx. Why? Because we are differentiating with respect to x. This is what you have to understand. If you are differentiating with respect to x, you have to write dy by dx and so on. ठीक है. Eventually what you're going to do is, अगर ये dy by dx है, ये नीचे का y इसको ऊपर ले जा लो. y, you have minus tan x, you have minus 2 tan 2x,
then you have minus 3 tan 3x, and then you have minus 4 tan 4x I guess. हाँ, और ये y की वैल्यू you have to put it back, right? This was the value of y, तो इसको वापस डाल दो. That's it. Always remember. अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता ना कि डिफरेंशिएट दिस, प्लीज इक्वल्स में y लेके चलो, और एल्स you cannot take log both sides, right? There should be two sides in order to take log. This is how you have to simplify if there are questions like these. And ये नहीं आएगा 4 मार्क का, बट इस तरह से करना है. जब भी आपको लगे कि या इट्स गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिफरेंशिएट, दिस इज हाउ यू कैन डू. लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर क्वेश्चन जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत ही हार्ड लग रहा है. नाउ देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप बिना लॉग लगाए भी कर सकते हैं. अप्लाई चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल, यू विल एनीवे गेट इट. Let's just look at this question. X minus 1, then you have x minus 2, and then you have x minus 3, x minus 4, x minus 1. There are very good questions in NCERT also, अगर हम ये ले रहे हैं. Now again, करने को तो कर सकते हैं ना. We can apply chain rule, then we can apply question rule, then we can apply product rule. हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन वही चीज़ है, it's going to be very very lengthy. तो क्यों ना हम इसमें log ही लगा दें. Taking log both sides, that is something you have to write. तो वो लिख लीजिएगा. This is going to be log y, और मैं इसी में लगा देती हूँ इधर भी log. अच्छा, यही चीज तो मैंने क्या बताया था. सबसे पहले तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं हम. तो इसका मतलब जो भी इसके अंदर है उस पूरे की पावर हाफ है. दिस इज व्हाट रूट मीन्स, राइट? आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई अगर x की पावर n है तो ये इसके बराबर होता है ना, कि अगर इसके साथ कुछ भी you can say the coefficient is something, if there is some coefficient, ये क्या आ जाता है, पावर में आ जाता है. तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है. बोथ आर इक्वल टू वन अनदर. कहने का मतलब if something is in the power, it will come as coefficient. तो सेम चीज है, क्योंकि 1/2 पावर में है, इसको आप पहले बाहर ले लो, उधर log y कॉपी करते रहना. तो 1/2 log x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5. Yes, you can multiply as well, but again this is going to be lengthy. जब हमने ये कर लिया, वी कैन अप्लाई द सेकेंड प्रॉपर्टी. क्या बोला कि अगर log a अपॉन b है, अगर a अपॉन b है, वी कैन राइट दिस एज log a माइनस log b. ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर अपॉन में है तो वी कैन राइट इट इन सच अ मैनर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5. इक्वल्स में क्या है हमारे पास, log y. आफ्टर दिस करने को अब थोड़ा इजी हो चुका है, लेकिन इसको और इजी करो ना. हमारे पास क्या है कि भाई दो अगर मल्टीप्लाई में है, हाउ कैन यू राइट log a प्लस log b, ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो करो, मल्टीप्लाई में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 log x minus 1 plus log x minus 2, and then you have this as minus log x minus 3, then you have plus log x minus 4, then you have plus log x minus 5, and this is how it is. Now you can easily differentiate, क्योंकि अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है. log x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1/x minus 1, x है तो डिफरेंशिएशन 1 ही रह जाएगा, ठीक. 1 इसके साथ x minus 2, इसके साथ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज गोइंग टू बी 1/x minus 3, 1/x minus 4, 1/x minus 5. और इधर बाहर 1/2 है, इधर क्या हो जाएगा, 1/5 dy by dx. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. इस तरह से सिंपल ये है कि भाई अगर log है तो सिंपल अपॉन में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है. अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो भी काफी लेंथी हो जाता है, एंड प्लस देर आर चांसेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इफ दिस इज अ क्वेश्चन. नाउ ये तो तब है कि जब हमारे पास चॉइस है कि हाँ भाई log लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे आप पे ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अप्लाई log. There is no other option, you will have to apply log. So those questions come for 4 mark. They are very very important. समझ लेना. देखो, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि x की पावर 2 है, you can easily differentiate, right? क्योंकि हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है nx n minus 1, where n is any constant. n क्या है यहाँ पे, एक constant है, could be anything, right? तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक. या फिर अगर हमारे पास a टू दी पावर x है जहां पे बेस कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन है भाई a की पावर x log a. इस तरह से कर लेते हैं हम. यानी कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है वी कैन डिफरेंशिएट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है वी कैन डिफरेंशिएट, दिस वी कैन डू. लेकिन
अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देखो ये मत बोलना कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो उसको तो भूल ही जाओ, दिस कैन नॉट, दिस इज व्हाट वी आर नॉट कंसिडरिंग. अंडरस्टैंड दिस कि अगर किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स है, तब इसके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना चेन रूल लगा सकते हो, ना प्रोडक्ट रूल, ना क्वेश्चन रूल, और नो अदर रूल विच यू नो, यू कैन नॉट अप्लाई एनी रूल, दिस इज समथिंग यू शुड नो. तो अगर कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसमें तो लॉग लेना बनता ही है, दैट यू हैव टू टेक लॉग. यू कैन नॉट सिंप्लीफाई सच क्वेश्चंस विदाउट टेकिंग लॉग. व्हाट यू हैव टू डू इज लॉग लो, इधर हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और इधर लॉग लेंगे. ना हमने क्या पढ़ा था भाई कि अगर x की पावर n है और log है तो ये कैसे हो जाएगा n log x. दिस इज व्हाट वी नो राइट. अगर इस तरह से है तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, ये sin x बाहर आ जाएगा log x and this is log y. Now as you can easily see these are two different functions which are there in product. Now you can easily differentiate first function, second function. You can apply product rule. क्या होता है first function as it is, second का differentiation when we are differentiating with respect to x, second function as it is, differentiation of first function. ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड को पहले करो या फर्स्ट को पहले करो, बट कीप वन ऑफ देम कांस्टेंट. log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, साथ में dy by dx. नाउ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो sin x इंटू 1 अपॉन x, log x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है. ये y इधर आ जाएगा तो y dy by dx. लास्ट में प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ y, ये y की जो वैल्यू विच इज x टू द पावर ऑफ sin x, पुट दैट बैक, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर, एलसीएम बेलसीएम कुछ नहीं लेना, छोड़ो इसको, इतना ही. बस इतना समझ लो कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, अगर नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट डायरेक्टली, यू हैव टू टेक लॉग बोथ साइड. बाकी जो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस करे उसमें यू हैव अ चॉइस वेदर यू चूज टू टेक लॉग और यू डोंट, ठीक है. बट इन अ क्वेश्चन लाइक दिस वेयर देयर इज अ वेरिएबल in denominator and again there is a variable in to the power basically, तो तब हमें इसके में क्या करना पड़ेगा, log लेना ही लेना पड़ेगा. कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो. अगर ये क्वेश्चन भी आ रहा है ना और इसमें आप log ले रहे हो, the answer is still going to be same. Remember that answer is still going to be same. For example, let's say अगर 2 की पावर sin x है and you're finding difficulty, तुम्हें लग रहा है बेकार, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, take log both side. तो इधर आ जाएगा log y, log 2 to the power sin x क्या होता है, पावर वाला टर्म कोफिशिएंट में आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है. log 2 equals to log y. Now one thing that you have to do that log 2 is a constant value, right? ठीक है, कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि बेस e है तो e की पावर हम क्या रखें कि भाई 2 आ जाए, तो इट इज एनीवे अ कांस्टेंट, राइट, क्योंकि e तो खुद एक नंबर है, ठीक है. 2 और 3 के बीच का नहीं भी समझ में आ रहा तो वैसे भी तुमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, log 2 की वैल्यू होती है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक इट्स 0.3010 और 0.6010 समथिंग लाइक दैट. तो खैर जो भी है कांस्टेंट है. तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा अगर 2 sin x होगा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, यू विल टेक 2 असाइड और sin x का डिफरेंशिएशन. सेम चीज इसमें भी है, यू विल टेक log 2 outside and you will differentiate sin x. So this is going to be log 2 cos x and log y का 1 upon y dy by dx. y को आप इधर लेके आ जाओ. So this is going to be what? y log 2 cos x. What was the value of y? 2 की पावर sin x. इस cos x को इधर लिख लो, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई में लग रहा है. And this is your final answer. This is how you get it. ठीक है, अगर ये है तो इसमें ध्यान रखें कि कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है, सो देर इज नो अदर वे, यू हैव टू टेक लॉग. बट इन सम क्वेश्चंस व्हिच आर हार्डर टू डिफरेंशिएट, देयर यू कैन टेक लॉग. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट अब इस क्वेश्चन को समझ लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर 2 ऐसे फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल्स टू, अब बहुत ध्यान से समझना, आई एम नॉट गोना डिफरेंशिएट, आई एम जस्ट रफली गोना टेल. अगर मुझे दे दिया x की पावर x और यहाँ पे दे दिया प्लस sin x, मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसको समझो बहुत ध्यान से. देखो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन वी कैन इजीली डू विच इज cos x, राइट. इसका तो नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये तो हमें आते ही नहीं है. द ओनली वे वी कैन डू इज बाय टेकिंग लॉग. तो लॉग मुझे सिर्फ इस फंक्शन में चाहिए ना, इसमें तो नहीं चाहिए. तो व्हाट यू गोना डू इज यू गोना लेट दिस फंक्शन एज u, लेट u इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ x फॉर अ बिट ऑफ टाइम, फॉर थोड़ी देर के लिए. तो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू u प्लस sin x. ठीक है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज गोइंग टू बी d by dx ऑफ y.
डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स आ जाएगा, u का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो du by dx एंड दिस विल गिव यू dy by dx. सेम रीजन, राइट. अब ये तो हमने कर लिया, पर इसकी वैल्यू भी तो करनी है, ये तो हमने लेट करा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? x की पावर x, ये चीज है. अब देखो इसमें समझना, ऐसे मत करना कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये तो वेरिएबल था, ये तो वेरिएबल की वेरिएबल है तो डायरेक्ट लॉग ले लो. अगर डायरेक्टली लॉग लोगे तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो दैट इज द रीजन, जिस भी फंक्शन में आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये क्या है, क्या है बोला कि मतलब ये तुम्हें लग रहा है कि भाई पावर की पावर एक फंक्शन, I mean, if there is a variable raised to the power of raised to variable, so this is what you have to do. You have to let that function as u. उसको अलग से u ले लो and separately differentiate करो. जैसे taking log both side, तो इधर आ जाएगा log u, इधर आ जाएगा log x to the power of x. This x is going to come over here as per the property. Now, इधर तो जब differentiate करोगे x के टर्म में यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए? x as it is, log x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो फंक्शन है, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन साथ में 1, log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u साथ में du बाई dx. कट गया 1 प्लस log x, ये नीचे का u इधर आ जाएगा, x की पावर x du बाई dx. वाई एम राइटिंग x की पावर x? क्योंकि u की वैल्यू x की पावर x है. एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यू बैक. x की पावर x 1 plus log x plus cos x equals this, whatever that is. So this is how you have to understand. अगर दो फंक्शंस हैं जिसमें से आपको लग रहा है सिर्फ एक ही में लॉग चाहिए, तो जिसमें लॉग चाहिए उसको u लेके अलग डिफरेंशिएट करो. इसको u ले लिया हमने, सिंप्लीफाइड सेपरेटली. एंड जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन करो, पुट द वैल्यू बैक इवेंचुअली. बट अगेन देयर कुड बी अ हार्डर क्वेश्चन एंड देयर विल बी अ हार्डर क्वेश्चन जिसमें दोनों फंक्शंस आपको ऐसे दिए होंगे जिसमें दोनों बेसिकली वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा. ये चीज बहुत ध्यान से समझ लो, जिसमें बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, व्हाट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स टेंड टू डू इज लाइक, इसमें क्या कर लेते हैं कि हाँ भाई दिख गया ये तो लॉग वाला है, सिंपल ले लिया ऐसे. अब आप मुझे एक चीज बताओ ना, हमने ये चीज पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि log x की पावर n होगा तो ये बाहर आ जाएगा, दिस वी हैव डन. बट ये तो नहीं पढ़ा ना कि अगर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका 2 बाहर ले लो. वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. इसको अगर ऐसे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हाँ ये पूरा log के साथ जो है अगर होल पावर में, दैट टू कैन कम आउटसाइड, देन यू कैन राइट 2 log x प्लस वाई. बट एक चीज समझ लो, इफ इट इज इंडिविजुअल पावर यू कैनॉट टेक x आउटसाइड, सो यू कैनॉट अप्लाई log इन सच अ मैनर. दिस इज समथिंग विच यू शुड नो. नाउ अब अगर मान लो दोनों फंक्शन ही आपके इस तरह से हैं जिसमें दोनों में पावर इस तरह से हो रखी है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, जिसमें आपको लग रहा है कि लॉग लग रहा है, उसको यू लेके अलग डिफरेंशिएट करो. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल. यू कैन टेक एनी एज सच, देयर आर प्लेंटी इन बुक्स. ठीक है. अगर मुझे दे रखा है एंड y नहीं दिया है ना, अगर y नहीं दिया है, कंसिडर y, फिर उसको y लेट करके यू हैव टू सिंप्लीफाई. फॉर एग्जाम्पल x की पावर x एक इजी ले लेते हैं एंड sin x टू द पावर ऑफ cos x, इस तरह से दिया है एंड दिस इज द क्वेश्चन. अब तो आप बोलोगे भाई दोनों में इस तरह से है कि भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट बाय द गिवन रूल्स दैट वी हैव टू टेक लॉग. लेकिन तभी भी याद रखो, यू कैन नॉट टेक लॉग एक साथ, यू कैन नॉट कंसिडर दिस, यू कैन नॉट टेक लॉग यहीं पे एंड यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस कि भाई लॉग ले लो इस तरह से, और यहाँ पे देखो लॉग क्या है, एक टर्म है. ऐसा नहीं होता, लॉग का ये कोई फॉर्मूला नहीं कि भाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से. दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस. वन थिंग दैट यू शुड नो कि भाई हम यहाँ पे पावर बाहर ले लें, ये चीज नहीं होती है इसमें. ठीक है. तो इसीलिए क्या करते हैं, जब दो फंक्शंस हैं, एक को ले लो u, एक को ले लो v, इक्वल्स y. डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx. u क्या है, x की पावर x. क्या करेंगे, सेम चीज du बाई dx की वैल्यू, पुट द वैल्यू बैक. कैसे करोगे, टेकिंग log u, log x रेज टू द पावर x. ये पावर है बाहर आ जाएगी, अब आ सकती है क्योंकि जितना पार्ट है उसकी होल पावर x है. तो log u गोइंग टू बी x log x. यहाँ पे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सिंपल जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1.
this is going to be 1 upon u du by dx. This is what you have to understand. Secondly, ये u क्या चल जाएगा पावर में, तो u ये x x कट गया 1 प्लस log x इक्वल्स du by dx. नाउ एक चीज समझ लेना कि u हमने लेट करा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था. सो वट एवर दैट वैल्यू ऑफ u इज, पुट दैट वैल्यू बैक, विच वॉज वॉट, x की पावर x. तो जितना भी ये आया है इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये du by dx का. सिमिलरली पुट द वैल्यू फॉर v एज वेल. v क्या है, sin x की पावर cos x. दिस इज द टर्म, ठीक है, एज यू कैन अंडरस्टैंड. v क्या है इसमें, sin x की पावर cos x. ध्यान से देख लो. अगेन जब इसमें log लगाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी log v, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, log sin x की पावर cos x. अगेन जितना टर्म है उस पूरे की पावर cos x है, तो cos x कहाँ आ जाएगा, ये बगल में आ जाएगा, तो cos x log sin x. नाउ अगेन अंडरस्टैंड देयर आर टू फंक्शन 1 and 2. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल. देखो यहाँ तो घूम फिर के हर बार वही आना है, 1 upon v साथ में dv by dx, 1 upon u du by dx. y होता तो 1 upon y dy by dx. यहाँ पे अब आगे कैसे करोगे, cos x as it is into, देखो log sin x का डिफरेंशिएशन करना है ना, सबसे पहले 1 अपॉन जो भी log के साथ है sin x into log हटाओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x as it is cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, cos अपॉन sin क्या आ जाएगा, cot x. सो दिस इज गोइंग टू बी cot x cos x. दिस इज गोइंग टू बी माइनस sin x log x. यहाँ पे जो ये v है इसको इधर पहुंचा दो, दिस विल गिव यू dv by dx. पुट द वैल्यू ऑफ v बैक और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. बस इतना ही करना है इन क्वेश्चंस में. बट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट you have to let this function as u and the other function as v. Please don't make this mistake of taking log all together. You won't get any marks. एक चीज ये ध्यान रखो, this is not at all right. That is one thing that you should know. You cannot differentiate it directly. So this is all about log. It is the most important topic. बिल्कुल आखिरी में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज डिफरेंशिएशन में से इतना कर लो, काफी है, 4 मार्क आ जाएंगे अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो. और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह से होता है, वो तो बहुत ही इजी है कंपेयर टू दीज. बट ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आर मस्ट, जिसमें दोनों फंक्शंस हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक को यू लिया एक को वी लिया, सेपरेटली डिफरेंशिएट करो बाय टेकिंग लॉग. साथ में करने की कोशिश करोगे ना, आधा नंबर भी नहीं देंगे वो, क्या पता दे दें, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट यू विल डू. अगर मान लो क्वेश्चन ये है cos x to the power of y and then you have cos y raised to the power of x. तो इसमें y नहीं लेट करते हम, बिकॉज वी हैव इक्वल्स टू, वी हैव टू साइड्स LHS एंड RHS. डायरेक्टली log लोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा log cos x की पावर y, इधर आ जाएगा log cos y की पावर x, इधर y आ जाएगा y log cos x, और इधर क्या आ जाएगा x log cos y. एंड देन यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, y इंटू log cos x एंड x इंटू log cos y. ठीक है, इस तरह से करना है. इफ यू वांट टू डू, एक बार कर ही लेते हैं इसको. देखो y एज इट इज, log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. अगर हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करें, विच वी आर डूइंग, इक्वल्स x, सॉरी यू विल हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का ये पूरा डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस log cos x as it is, y का डिफरेंशिएशन with respect to x is going to be what, dy by dx equals, ठीक. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. अब log cos y का देख लो, d by dx ऑफ, सबसे पहले 1 अपॉन log का डिफरेंशिएशन cos y, log हटा, cos y का डिफरेंशिएशन sin y, cos हटा, y with respect to x going to be dy by dx. That is minus tan y dy by dx plus log cos y as it is, और x का डिफरेंशिएशन 1. नाउ देखो इतना तो आप कर सकते हो, आपकी dy by dx वाले दोनों टर्म्स को एक साइड ले आओ, bring the other at one side and find the value of dy by dx. This is all about log. Do it very nicely because it is one of the most important topic, not one of the most, it is the most important topic of differentiation, and that's all about it. Thank you very much.